প্রমোটারের বিরুদ্ধে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ির 25 নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লী এলাকার বাসিন্দা এক বৃদ্ধ। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এরপরেও ন্যায় পাননি, যে কারণে বিষয়টি নিয়ে মেয়র গৌতম দেবের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন 70 বছরের বৃদ্ধ জয়ন্ত চৌধুরী। জানা গিয়েছে, অসুস্থতার কারণে জয়ন্ত চৌধুরীর আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ। সে কারণে প্রতিবেশী প্রমোটার মোহিত ভক্ত তার 10 কাঠা জমিতে অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর প্রস্তাব দেয়। প্রমোটার মোহিত ভক্ত অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর বদলে তাকে 1800 স্কোয়ার ফিটের একটি দোকান, 900 স্কোয়ার ফিটের 4টি ফ্ল্যাট এবং নগদ 2 কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে রাজি হন বৃদ্ধ, কিন্তু অভিযোগ, অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে মোহিত ভক্ত তাকে না জানিয়েই একটি কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয় এবং নিজের মতো করে চুক্তিপত্র করে। টাকা না দিয়েই টাকা দিয়েছে বলে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এরপরেই পুলিশের কাছে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন বৃদ্ধ, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেয়নি পুলিশ প্রশাসন, যে কারণে বিষয়টিতে মেয়র গৌতম দেবের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বৃদ্ধ। পাশাপাশি মামলার সমাধান না হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকবে না বলে জানান। উনি প্রতারণা করেছেন, উনি আর্থিক সহায়তা আমাদেরকে সেমতো করেন নাই, বা যেটা আমার পাওনা ছিল সেটাও কাগজটা উনি বললেন অরিজিনাল কাগজগুলো দেন, আমি এখানে ঠিকঠাক করতে হবে, কাগজপত্র একটু কাগজপত্রগুলো ঠিক নাই, ঠিক করতে হবে। তো আমি বললাম যে ঠিক আছে, আপনি এগুলো করে সঠিকভাবে আমাকে জানান। আমাদের মাঝখানে দুজনের মধ্যে প্রথম একটা ফর্মালিটি কথা, ওনাকে বলছিলাম যে 2 কোটি টাকা দেবেন আমাকে একটা 900 স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট দেবেন 4টে, 1800 স্কোয়ার ফিটের একটা স্পেস দিতে হবে, ওখানে আমরা সুবিধা মতো আমাদের কিছু দোকানপাট যদি তৈরি করবো। হ্যাঁ, আর ফ্ল্যাট 4টে, ওটা 900 950 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে দিতে হবে। এই আর নগদ টাকা 2 কোটি টাকা চাইছিলাম। তারপরে উনি আর বিশেষ করেন নাই। হ্যাঁ, বলছেন যে ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর তার আগে একটা এগ্রিমেন্ট উনি আমাকে দিয়ে সই করে নিয়ে গেছেন, সেটাকে কী লেখা আছে আমি কিছু জানি। সইটা উনি আমাকে বললেন যে এটা পেপারটা কাজের পেপার, এটাতে একটু সই করতে হবে। ওইটা আমাকে উনি পড়ানো নেই, আমি ভালো করে দেখিনি। আমি চোখের প্রবলেম আছে, তো শরীর খারাপ, আমার চোখ অপারেশন হয়েছে। তারপর শেষে ওইটাতে সই করে দিলাম। উনি তারপরে আমাকে দিয়ে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলাইলেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে গিয়ে সই টই করে নিয়ে করে অনেক কাগজপত্র সই হলো। ওখানে চেক বই ছিল কিনা বুঝতে পারিনি, সবই সই করে দিয়েছি। এমত অবস্থায় উনি কিছু টাকা উঠাইলেন, টাকা উঠে টাকাটুকু আমাকে আর দেন নেই, না বিক্রি হয়নি, মানে উনি হস্তগত করেছেন আর কি। হ্যাঁ, নিজের নামে উনি করছেন, হয়তো এটা আমাকে বলেন নাই কিছু। একদিন আমাকে বললেন যে এটা এখন আপনাকে আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে বের করে দিতে পারি, এসব বললেন না। আমি বললাম যে এটা কেন বললেন, এটা তো বলাটা ঠিক হবে না। উনি এই কবছরে উনি আমাদেরকে আর্থিক সহায়তা করেছেন, কখনো 500, 1000, 2000, 3000 এইভাবে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ছেলেদেরকেও দিয়েছেন, এটা ঠিক দিয়েছেন, তবে আমাদের এটা পর্যাপ্ত হয়নি। আমাদের সবসময় একটা অভাব অনটন লেগেই থাকে। যাই হোক, উনি যা দিচ্ছেন সেটা হিসাব আমাদের কাছে আছে, সেই হিসাব অনুযায়ী ওনাকে আমরা টাকা ফিরিয়ে দেবো। ওনার টাকা ওনাকে আমরা ফিরিয়ে দেবো। আর তাছাড়া আমি চাচ্ছি না ওনার সাথে আর থাকতে। সেরকম কিছু তো আমাকে এগ্রিমেন্টই তো দেখালেন না, তো আমরা কী করে বুঝবো? এগ্রিমেন্ট চেয়েছিলাম, এগ্রিমেন্ট বললেন এটা আর কি, এটা একটা ফর্মালি ইয়ে করা হয়েছে। আর ইদানিং এই কাউন্সিলরও ব্যাপারটা জেনেছেন। উনি বললেন যে গৌতম দেবও খবরটা জানেন। তো ওনার কাছে আমার মাননীয় মেয়রের কাছে এটুকুই আমার অনুরোধ আর কি, জায়গাটা আমিও ভগতের সাথে, গুড্ডু ভগত অর্থাৎ মোহিত ভগতের সাথে কোনো কাজ করতে যাচ্ছি। আমার চোখ অপারেশন হয়েছে, আমি চোখে কিছুই দেখি না। হ্যাঁ, তাছাড়া কিডনি প্রবলেম আছে, ডায়াবেটিস কিছু লক্ষণ রয়ে গেছে, হার্টেরও কিছু সমস্যা ভুগতেছি মনে হচ্ছে। সব দিকেই শারীরিক অবস্থার ভালো যাচ্ছে না। শারীরিক অবস্থা ভালো যাচ্ছে, হাত পাও ফুলে গেছে, মানসিক অবস্থাও খারাপ। এই চাপে পড়ে, এই যে প্রতারণার চাপে পড়ে, এটা তো একটা দূরভিসন্ধিমূলক, মানে জালিয়াতি হয়ে গেছে, দূরভিসন্ধিমূলক একটা প্রতারণা। এটাই আমি চাচ্ছি যে আমার জায়গা জমিগুলো যেভাবে ছিল সেইভাবেই ফিরে আসুক। আমার যা করার, যা করার পরে আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত করব। এখন বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা যাচ্ছে, প্রায় ধরেন পয়সা করে জোর নেই, কিছু নেই।
উনি তো যা করার তো করছেন। আমাকে আর্থিক সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন, আর্থিক তো কোনো সহায়তা করে নেই। তার মধ্যে প্রতারণা করেছেন। এগ্রিমেন্টে কী আছে আমরা জানিও না, কীভাবে উনি কী করছেন তাও জানি না। আর দেখেন এমতো অবস্থায় যদি এইভাবে চলে তাহলে তো আমাদেরকে মানে আত্মহত্যাই করতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি, প্রশাসন এই ব্যাপারে কোনো মানে এখনও কোনো পদক্ষেপ ঠিকভাবে নিচ্ছে না। এখন আশা করি গৌতম দেবের কাছেও খবরটা পৌঁছেছে। উনি যদি সহায়তা করেন, উনি যদি একটু দয়া করে আমার দিকটা একটু সমর্থন করেন থাকেন, তাহলে আমার খুব উপকার হয় আর কি। এমত অবস্থায় আমার যদি কিছু হয় বা আমার পরিবারের যদি কিছু হয়, তার জন্য আমি এই পথে যাই থাকি। কেননা আমরা এখন খুব মানসিক দুশ্চিন্তায় এবং আর্থিক কষ্টে ভুগতেছি। আর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনগুলো। হ্যাঁ, 1 মাসের মতো হয়ে গেল আমরা এটা কমপ্লেন জমা দিয়েছি সময়। এমত অবস্থায় তো প্রশাসন কি ব্যবস্থা নিল না নিল কিছু বুঝে উঠতে পারতেছি না। আমি চাচ্ছি যে উনার কাছ থেকে আমরা জিনিসটা নিয়ে নিব, আমরা আমাদের স্বাধীনভাবে ইয়েটা করব। তা নাহলে তো আমাদের তো এখন না খেয়ে মানে আত্মহত্যা সামিল হয়ে যাচ্ছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন প্রমোটার মোহিত ভাগ। ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, জয়ন্ত চৌধুরীর ইচ্ছেতেই চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি 4 বছর আগে হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাকে লক্ষাধিক টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন ওনার মনে হচ্ছে তার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে কোনো প্রতারণা হয়নি বলেই জানান তিনি। तो ठगी तो वो हमारे साथ कर रहे हैं। आज 4 साल से मेरे साथ में वो रिलेशन में है। आज सारा कुछ करने के बाद में आज उनको लग रहा है कि 4 साल बाद कि उनके पास में ठगी हुआ है। अभी वो तो मेंटली हैरेस हमको किए जा रहे हैं, कर दिए, थाना में केस कर दिए, सब कुछ कर दिए। नहीं नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। जो भी जानकारी है वो सारा चीज उनको दिया हुआ है। आज 4 साल से उनको सारा चीज नॉलेज में होते हुए आज 4 साल के बाद में वो हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इतना लंबा टाइम में क्यों आके एलिगेशन लगा रहे हैं? आज उनको सब चीज जब मालूम था, सब चीज वो जब मेरे साथ आज वो खुद एलसीसी करने गए हैं मेरे बिहाफ में। वो उनको आज कुछ दिन पहले तक सॉइल टेस्ट हुआ, वो अपना जमीन का पेड़ खुद काटे काम आगे बढ़ाने के लिए। फिर वो उनको कैसे समझ में आया अभी क्यों उनको लग रहा है कि हमने उनके साथ जालियाती। आज तो वो मेरा पैसा लेके बैठे हुए हैं। आज हमको तो इंटरेस्ट गिनना पड़ रहा है। आज हमारा हालत खराब है उनके वजह से। तब वो जब हम उनके साथ जालियाती किए तो वो अपना जमीन पे तो हमारा उनका जमीन पे तो हमारा कब्जा नहीं है। उनके जमीन पे तो वो खुद रहते हैं। वो उनके जमीन पे उन्होंने पेड़ कटवाया, सॉइल टेस्ट करवाया, क्यों करवाया? आज रजिस्ट्री ऑफिस में हम रजिस्ट्री ऑफिस में कैसे किस बिना पे जालियाती करके उनसे रजिस्ट्री करवाएंगे? रजिस्ट्री ऑफिस तो मेरा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं कि हम उनको लेके गए और रजिस्ट्री करवा लिए। रजिस्टर पूछता है उनको और सारा चीज वो खुद बैठ के अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, तो वो हमको बोलेंगे कि हम जालियाती किए हैं। नहीं, हम कुछ मुकरे नहीं हैं। आज वो जो चीज वो हमसे हमारे ऊपर आज क्लेम कर रहे हैं, ऐसा क्लेम पूरा गलत है। आज जितना जमीन वो नीचे बोले 1800 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट का कोई दुकान निकलेगा ही नहीं। आज आप तो गवर्नमेंट के ऊपर में नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपको राइट्स देगा उसके ऊपर में तो आप जा नहीं सकते। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही 1000 स्क्वायर फीट का नीचे पे दुकान देगा, वो भी पूरा दुकान हमारा उनको दिया हुआ है। तो हम अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको 1000 स्क्वायर फीट का परमिशन देगा तो हम उनको 1800 स्क्वायर फीट कहाँ से लाके देंगे? तो ये वो उनका मन का चीज है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज जो चीज पेपर में है, पेपर के बाहर में अगर वो कल बोलेंगे कि हमको उनको सारा कुछ बना के उन्हीं को दे देना था हमारा खुद का पैसा से, तो वो तो उनका मन का ये है, वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। तो फिर पेपर का वैल्यू क्या है? डील सेम उसी तरह से ही कंस्ट्रक्शन बेसिस पे कि उनको चाहिए था कि हाँ ठीक है, हमारा पास जमीन है, हमारा डेवलप करने का पावर नहीं है, हमारा पास उतना क्षमता नहीं है। तो हमको भी लगा कि हमारे नया एक ऑप्शन आ रहा है। हमारा तो पहले कभी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम है नहीं, तो हमको भी नया ऑप्शन आया, तो हमने सोचा चलो इसी बहाने हमारा भी काम नया कुछ चालू होगा, क्योंकि हम लोग व्यावसायिक आदमी हैं। जहाँ ऑप्शन निकलता है तो हम लोग भी सोचते हैं कि हाँ चलो कोई नया बिजनेस हाथ में लगेगा। तो उस टाइम में जो उनके साथ में हमारा डील हुआ, हाथों हाथ उनको हम आज 3 साल से पैसा दे रहे हैं। पैसा देने के बाद में जब हमको दिखा कि हाँ इतना पैसा उनके पास चला गया, हमारे पास प्रूफ नहीं है। आज तो फिर हमने उनके साथ में एग्रीमेंट पहले किया था, वो एग्रीमेंट के बाद में वो फिर से चेंज करवाए हमसे कि नहीं इसमें हमको और चाहिए। तो फिर से रीशेड्यूल में एग्रीमेंट हुआ। तब हमने एग्रीमेंट जब हमारे लॉयर के पास गए तो लॉयर बोला कि ये एग्रीमेंट बार बार क्यों चेंज हो रहा है, तो आप इसको रजिस्ट्री करवा के रखिए।
तो फिर हमने उसके बाद में सेकंड पहला एग्रीमेंट तो रजिस्टर ही नहीं है, तो दूसरा एग्रीमेंट फिर हमने रजिस्टर करवाया। वो रजिस्टर पे रजिस्टर, सिग्नेचर पे सिग्नेचर किए जा रहे हैं। आज 4 साल के बाद में तब जाके बोल रहे हैं कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है। वो कोर्ट वो LUCC करने के लिए SJD ऑफिस में हेयरिंग में जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो उसका क्या मतलब निकलता है। वो उनको आज महीना दिन पहले तक उनके जमीन पे सॉइल टेस्ट हुआ काम आगे बढ़ने के लिए। अगर उनको ये कुछ नॉलेज ही नहीं था वो खुद से क्यों अलाउ किए। एक सॉइल टेस्ट करने में आपको तो मालूम है ना 6 घंटा टाइम लगता है, मशीन आता है, सब कुछ आता है। तो आपके जमीन पे कोई मशीन लेके आके सॉइल टेस्ट कर रहा है, आप खुद जाके LUCC करवा रहे हैं, लैंड एक्विजिशन का पेपर वर्क करवा रहे हैं, तो आप ऐसे ही जा चले जाएंगे किसी के पास। आप उसमें रजामंद है तभी तो जा रहे हैं, बिना रजामंद से आप क्यों जाएंगे। अभी उनको 2020 का चीज में अभी उनको लग रहा है कि हाँ हमारा जमीन का आज हम और इनको, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ उनका 2 बार एग्रीमेंट हो चुका है। वो सोच रहे हैं कि इस तरह से हमको फिर मेंटली हैरेस करके फिर से अपना वैल्यू बढ़वाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमको भी तो अपना पैसा उठाना है। आज हमारा क्या ये है, उनका तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, हमारा तो बिजनेस बैकग्राउंड है। अभी देखिए वो हमारा अगला कदम, हम तो चाह रहे हैं कि हम अपना काम करें, हमारा जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा को हम अपना रिकवर करें। तो इसमें उनको भी नुकसान है, हमारा नुकसान हो ही रहा है। आज हमको हर मंथ में उनका वजह से मार्केट में इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, क्योंकि हमको भी तो मार्केट से पैसा लेके काम करना पड़ा है। आज वो चीज तकलीफ तो उनको नहीं है, तकलीफ तो हमको है, क्योंकि पार्टनर हमको जो पैसा दिया वो तो उनके पास जाएगा नहीं, वो तो हमको पैसा मांगेगा। आज उसके वजह से हम बैंक में लोन लेके आज हमको दूसरा को पार्टी को पैसा चुकाना पड़ रहा है। आज वो हमारा कितना बड़ा क्षति कर रहे हैं वो तो हमको मालूम है ना। वो जाके थाना में जाके कंप्लेंट कर दिए, थाना में भी हमारा इंस्पेक्शन थाना में बुलाया, थाना में भी हम वही सेम चीज उनको जाके सारा डॉक्यूमेंटेशन किए कि हमारा ये चीज है। अब सामने में वो हमारे ऊपर केस करके बैठे हैं। और इसके बाद में भी आज वो हमारे ऊपर 24 अप्रैल को केस किए हैं। और जो आदमी 24 तारीख को ऑलरेडी मेरा ऊपर कोर्ट में केस किया और हमको मालूम चला 27-28 को, और 27 तारीख तक भी हमसे वो पैसा मांग रहा है और हमने मोबाइल में उसको पैसा ट्रांसफर किया है, करीबन 75-70 लाख रुपया के ऊपर दिए। अब इसका हम उनका क्या करेंगे। वो तो आज 10 बोलेंगे, कल बोलेंगे कि हम पैसा ही नहीं लिए। अभी आपका इसका जब उन्होंने कंप्लेंट डाला तो उसमें तो वो बोल रहे कि हम एक पैसा भी नहीं ले। आपको कहाँ से मालूम चला कि 10 लाख रुपया लिए। कंप्लेंट में तो उन्होंने पूरा मना कर दिया कि हमने पैसा ही नहीं लिया। जो बैंक में भी लिया वो हमारे साथ जाके पैसा उठा के वो भी बोल रहे कि हमने ही ले लिया। अभी आपको एक बात वो बोल रहे हैं कि आपसे अभी कि 10 लाख रुपया लिया, तो कंप्लेंट के टाइम में बोला कि हम कुछ नहीं लिए, तो बात में किसका वो ये कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा चीज यही कहना है कि हमारा जो पैसा आज 4 साल से उनके पीछे लगा हुआ है, हमको अपना पैसा का इंटरेस्ट उठाना है। हमको जो काम के लिए हमारा साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है हमको वो काम करना। उनके लिए उनके बिहाफ में उनका जो है रेशियो वो उनको मिलेगा, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि एग्रीमेंटेड है। अब उनको अगर वो तो हमारा पूरा चीज को ही खारिज कर दे रहे हैं। आज तो वो मेरे ऊपर 420 कर, लेकिन आज हमारा बात है आप 4 साल से किसी के साथ में है तो 4 साल से अगर हम आपको कुछ भी बोले, आप जब हम 420 है तो आप हमारा बात क्यों मान रहे हैं। उन्होंने आज इतना दिन से मेरा पैसा लेके आज उनका पूरा फैमिली चलाना, उनके बच्चों का खर्चा देखना, सब कुछ करना, आज वो करके तो हमको हम फंस गए। आज हमको तो मार्केट में हमारा ऊपर में ये लग रहा है कि आज हमको जितना प्रेशर है पैसा का मार्केट में उसका दुख तो उनको नहीं समझ में आ रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि हम मार्केट में पैसा कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। और हमारा साइड में कुछ है नहीं। हमारा देखिए हमको भी यही है कि ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं सरासर फालतू एलिगेशन है। ये उनको समझना चाहिए कि हम आज पैसा किसी का भी मेहनत का पैसा होता है। आज वो चीज़ को समझेंगे कि हम किसी का पैसा ले लिए, वो पैसा को हम नकार देंगे, ये बात सही नहीं है।